Welcome to this vlog edition of Urban Tales. I'm your host Jagdish Singh Sajman, and today is the final day of 3 days long 51st Rose Festival in the year 2023. This year, the light and sound show has been the main attraction of the Rose Festival 2023. This half an hour long, scintillating and dazzling show of light and sound revolving around the theme of Azadi Ka Amrit Mahotsav and showcasing the journey of the city beautiful Chandigarh from its very inception to present day as a most modern and the smart city was held all 3 days at Rose Festival at 7 p.m. Festival this year was an event full of entertainment, cultural show, folk dances, fun-filled performances, and a lot of competitions. And just before enjoying the final light and sound show, a few words about Rose Garden and its creator. Rose Garden in Chandigarh is one of the most beautiful and the well-known attraction in our city. The Rose Garden, also known as Zakir Hussain Rose Garden, was founded in 1967 and has since become one of the most visited places in Chandigarh. The garden spans over 30 acres and houses more than 50,000 rose plants of more than 825 different varieties. The garden was designed and created by Dr. M.S. Randhawa, who was the first Chief Commissioner of Chandigarh. He was inspired by the famous garden of Versailles in France. He wanted to create a garden in the heart of the city that would showcase the beauty and the diversity of the rose flower. Second prominent name among its creators is of Mr. M.N. Sharma, who was a chief architect then. And the third name is Kulbir Singh, who was the chief engineer. It's already 7 p.m. now. Today is the final day of 3 days long Rose Festival, which just started on 17th February, and today is the 19th February, the last day of the festival. People are now just waiting for the light and sound show. This show has been the main attraction of the Rose Festival this year. This half an hour long, scintillating and dazzling show of light and sound revolving around the theme of Azadi Ka Amrit Mahotsav simply showcased the journey of the city beautiful Chandigarh from its very inception to present day as the modern and the smart city. Let's the show begin.
स्वागत है आप सबका। आज हजारों गुलाबों की महकती खुशबू के बीच हम आपको चंडीगढ़ और रोज गार्डन की कहानी सुनाएंगे। इतिहास, संस्कृति और विकास की कहानी चंडीगढ़ की ही जुबानी। आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित ये शो ध्वनि, प्रकाश और दृश्यों का एक कलात्मक समागम है। ये हमारा दावा है कि इस शो को देखने के बाद आपको चंडीगढ़ से प्यार हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि शो के दौरान अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे रखें या फिर स्विच ऑफ कर दें। तो पेश है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ की अविस्मरणीय प्रस्तुति। तो बहते पानी की तरह आगे निकल जाता है, मगर अपने पीछे दास्तानें छोड़ जाता है और हम किनारे पर बैठे वो दास्तानें सुनते रहते हैं। ऐसी ही एक दास्तान आज मैं आपका शहर चंडीगढ़ आपको सुनाने जा रहा हूं। इस दास्तान में इतिहास के राज भी हैं और दर्द भी, उम्मीदें भी हैं और ख्वाब भी, मोहब्बत भी है और दोस्ती भी। हवा शिवालिक से बहती मेरे बागों को लहराती, सुखना की मध्यम लहरें गा गा कर हीर सुना जाती। चहल पहल बाजारों में, पर भीड़ भाड़ से दूर हूं मैं। शांत मोहल्लों तक ये सड़कें बिना शोर के ले जाती। नए विचार का स्वागत भी और रखा पुराना संजोकर खुले हाथ की सोच लिए मैं सुंदर शहर हूं चंडीगढ़। खिलते गुलाबों के बीच आज इस 50 से भी अधिक वर्षों से लगातार मनाए जा रहे गुलाबोत्सव का आनंद लेते हुए चारों ओर अपनी छटाएं बिखेरती कलाओं में सराबोर होते हुए आज आप जिस एहसास से रूबरू हो रहे हैं, वास्तव में वो एहसास ही हूं मैं, चंडीगढ़ हूं मैं। आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, एक और अपने गौरवशाली इतिहास के पन्ने पढ़ रहा है, तो दूसरी ओर एक आने वाले स्वर्णिम काल की परिकल्पना लिख रहा है। तो क्यों ना मैं भी आपके साथ अपना इतिहास भी दोहरा लूं और आने वाले कल के सपने भी सजा लूं। आखिर हमको भी तो आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी ओर से शंखनाद करना है। इतिहास है जो विश्व
जो एहसास है जो कुछ खास है जो इतिहास है जो विश्वास है जो एहसास है जो कुछ खास है जो वो चंडीगढ़ है हाँ चंडीगढ़ है बस चंडीगढ़ है मेरा चंडीगढ़ है मेरी याद है जो सम्मान है जो पहचान है जो मेरी शान है जो वो चंडीगढ़ है हाँ चंडीगढ़ है बस चंडीगढ़ है मेरा चंडीगढ़ है। आपने अपने हाथों की लकीरों को अनेक बार समझने की कोशिश की होगी, तो आज मेरे साथ मेरे इस हाथ की लकीरें भी समझिए। सर ये देखिए, मुझे खुदाई करते वक्त ये क्या मिला और वहाँ बाकी लोगों को भी ऐसा बहुत कुछ मिला है। ये तुम्हें इसी जमीन के अंदर मिला, मगर ये तो कई हजार साल पुराना है। मतलब इस जमीन पर हमसे हजारों साल पहले भी जी हां, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा संस्कृति के सबूत अपनी धरती के गर्भ में छुपाए मैं हजारों सालों पुरानी कहानियों को अपने सामने घटित होते देख चुका हूं। मगर आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी कहानी आपके साथ कब और कैसे जुड़ गई। इतिहास जुड़ा है मेरा भारत के इतिहास के साथ। हुआ विभाजन, फिर आई वो गम की लंबी काली रात। आधा हिस्सा छूट गया, पंजाब बचा आधा इस ओर। बहुत बड़ी कीमत देकर पाई आजादी की सौगात। टूटा था पर हारा नहीं था। देश मेरा फिर हुआ खड़ा, सबके मन में उदित हो रहा एक नई सोच वाली राजधानी, पंजाब प्रांत का शहर नया। आशीष मिला मां चंडी से और चंडीगढ़ को नाम मिला। शिवालिक की गोद में जन्मा नया शहर ये सपनों का। हर एक हिस्सा सुनियोजित हो, ऐसा सबका निश्चय था। कम संसाधन, कठिन चुनौती, पर आशा बल कम न था। भारत के सुनहरे भविष्य की उसे निशानी बनना था।
इस सपनों के शहर को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई अमेरिकी निर्माताओं एल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोविकी को, जिसको बाद में फ्रेंच आर्किटेक्ट ल कॉर्बूजियर ने आगे बढ़ाया। और इस काम में उनके कंधे से कंधा मिला साथ दिया भारत के भूमि पुत्रों जैसे कि चीफ इंजीनियर पीएल वर्मा, डॉक्टर एमएस रंधावा और बहुत से भारतीय आर्किटेक्ट्स ने। ल कॉर्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा और हर सेक्टर को अपने आप में आत्मनिर्भर बनाया, जिसमें घर भी थे, बाजार भी थे, दफ्तर भी और अपने अपने बाग बगीचे भी। रोचक बात यह है कि ल कॉर्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर की कल्पना एक मानव शरीर की संरचना के रूप में की। एडमिन ब्लॉक को शीश बनाया, कैपिटॉल जो कहलाता। 17 सेक्टर चंडीगढ़ का दिल बनकर है मुस्काता। लेजर वैली श्वास कोश बन सेहत का नित ध्यान रखे। एजुकेशन ब्लॉक शहर का बुद्धिवर्धन करवाता। शहर की सड़कें रक्त धमनियों के जैसे ही काम करें। औद्योगिक रचना आंतों की भांति शहर को साफ रखें। इस विहंगम मानवीय शरीर की संरचना के अलावा जो सबसे बड़ा उपहार ल कॉर्बूजियर ने इस शहर को यानी मुझे दिया, वो था इसका खुले हाथ वाला प्रतीक, जो आज इस शहर की शान बन चुका है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मैंने अपनी बाहें खुले आकाश के नीचे फैलाई और उनमें डेवलपमेंट, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और एजुकेशन जैसे विकास कार्य समाते चले गए। मेरी याद है जो सम्मान है जो पहचान है जो मेरी शान है जो वो चंडीगढ़ है। हाँ चंडीगढ़ है, बस चंडीगढ़ है, मेरा चंडीगढ़ है। जहाँ शिक्षा भी है और खेल भी है, जहाँ प्यार भी है और मेल भी है। जहाँ शिक्षा भी है और खेल भी है, जहाँ प्यार भी है और मेल भी है। वो चंडीगढ़ है, हाँ चंडीगढ़ है, बस चंडीगढ़ है, मेरा चंडीगढ़ है। वो चंडीगढ़ है, हाँ चंडीगढ़ है, बस चंडीगढ़ है, मेरा चंडीगढ़ है। 1958 में सुखना चंडीगढ़ का मान बनी। जब राज्य बना हरियाणा, तो भी केंद्र रहा चंडीगढ़ ही। शहर बढ़ा तो बाहें खोली पंचकुला मोहाली तक। ट्राई सिटी के नाम की पूरे भारत में फिर धूम मची। सबसे सुंदर शहरों में फिर दुनिया भर में नाम हुआ। हरा भरा एक शहर आधुनिक मौलिक एक प्रमाण हुआ। मोहाली के ग्राउंड में शतकों की बौछारें भी होती। टैगोर थिएटर रंगमंच की दुनिया में एक नया ऐलान हुआ। जाकिर हुसैन रोज गार्डन खुद में एक चमत्कार। सैकड़ों तरह के फूल गुलाबी, चंडीगढ़ का अलंकार। बरगद और नीलगिरी की होती ठंडी छांव यहाँ।
शहतूत, अशोक, अमलतास भी फैलाते हैं पांव यहाँ। पक्षी प्रवासी सुखना पर हर साल बैठते हैं आकर। आसपास के जंगल में चलते पशुओं के दांव यहां। पीयू और पीजीआई ने भारत को विद्वान दिए और अनेकों संस्थानों ने कितने अनुसंधान दिए। रॉक गार्डन, रोज गार्डन, ओपन हैंड और गांधी भवन, एक से बढ़कर एक मंजर हसीन। किसको देखें, कठिन चयन। संगीत की दुनिया में भी चंडीगढ़ ने नए मुकाम दिए। पंजाबी संगीत सिनेमा में सर्वोत्तम परिणाम दिए। आज अपनी कुदरती खूबसूरती, म्यूजियम्स, महोत्सवों, बाजारों, सुंदर सड़कों और एक जिंदा दिल सोच के साथ मैं वो एक शहर बन गया जैसा कोई भी दूसरा शहर बनना चाहता है। पर इतने पर ना रुकना मुझको, अभी तो आगे बढ़ना है। आप सभी को साथ में लेकर इतिहास नया एक गढ़ना है। देश मनाता अमृत उत्सव और देखता है सुनहरा कल। मुझको भी इस सपने में योगदान बड़ा ही करना है। आओ करें हम सब संकल्प, साथ चलेंगे हाथ मिलाकर। खुले हाथ की सोच लिए, मैं सुंदर शहर हूं चंडीगढ़। यार है जो
नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा अविस्मरणीय प्रस्तुति के लिए लाइट एंड साउंड शो की पूरी टीम का मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने इस लाइट एंड साउंड शो का भरपूर आनंद लिया होगा। आज के इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से सफल बनाने के लिए मुख्य अतिथि जी परम आदरणीय श्री धर्मपाल जी का मैं एक बार दिल से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। साथ ही धन्यवाद देती हूँ माननीय महापौर जी का और आए हुए सभी विशिष्ट एवं गणमान्य अतिथियों का आज की इस आम सी शाम को Thanks for खास watching. बनाने Hope के you लिए have इस enjoyed कार्यक्रम the को light यहीं and संपन्न sound करते show हैं। in this blog धन्यवाद। edition of जय हिंद, Urban Tales. जय भारत। Please like, subscribe, comment and share. Thanks a lot. All the best.